Very good morning, students. Today I am sharing a video with you all that is based on your Tata classes, that is math classes. We have done lesson number 3 about mouse and keyboard, and previously I have shared a video with you all that is based on mouse. Okay, smart class video that is based on mouse. Now today I am sharing a video, smart class video, that is based on keyboard. Okay, so what you have to do, we have already done the chapter. I have given you the explanation. Now you just have to watch this video so that you can have a clear picture of the chapter. We all use pen or a pencil to write on a paper. Similarly, a keyboard is used to write on a computer. A keyboard is a device attached to the computer. You can type by pressing the keys on the keyboard. The keyboard contains several keys which are used to type letters, words, and numbers on the computer. Some of the different keys present on the computer keyboard are cursor control keys, alphabet keys, number keys, enter keys, backspace key, delete key, spacebar key, shift keys, tab key, escape key, and lock keys. Let's learn about these keys in detail. First, let's learn what is cursor and cursor control keys. The cursor is a small blinking line that you can see on the monitor. You can move this cursor by using cursor control keys. There are 4 cursor control keys on the keyboard. The cursor keys are marked with arrow symbols in 4 directions. When you press any of the cursor keys, the cursor moves in that direction. For example, when you press the rightmost cursor key, the cursor will move to the right. Now, let's look at the alphabet keys. Alphabet keys are the set of keys used to type letters, words, or sentences. There are 26 alphabet keys on the keyboard from A to Z, but they are not arranged in order. Another set of keys you can see on a keyboard are number keys. The number keys are used to type numbers. There are 10 number keys on the keyboard from 0 to 9. There are 2 sets of number keys on the keyboard, one at the top of the alphabet keys and the other on the right of the alphabet keys. Let's look at the thickest key on the keyboard, that is the Enter key. When you press the Enter key, the cursor moves to the next line. There are 2 Enter keys on the keyboard. The Enter key is also called as the Return key. Next, let's look at the Backspace key. The backspace key is used to erase the word one by one from right to left. For example, if you want to delete the letter S from the word papers, then move the cursor to the right side of the letter S and press the backspace key. You can see that the letter S is deleted. Similarly, you can use the delete key to erase the letters on the screen. When you press the delete key, the letters are erased from left to right.
Do you know the longest key on the keyboard? The spacebar key is the longest key on the keyboard. It is used to give space between two words or letters. This is the shift key. The shift key is Shift key is not given in your book, but you can see what is the use of shift key. Okay. used to type special symbols. You can see the special symbols on the upper part of the number keys. There are two shift keys on the keyboard. Let's see how to type the percentage symbol in your document. If you press the percentage key alone, the monitor displays the number 5. So, if you want to type the percentage symbol, press and hold the shift key and press the number key 5. Now, you can see the percentage symbol. Then, What is the use of shift key? Basically, you will see when you will see the keyboard ना, आप देखोगे उसमें कुछ कीज़ ऐसी होती है, नंबर कीज़, जिसमें कुछ सिम्बल्स भी बने होते हैं. उसी की में नंबर भी लिखा होता है और सिंबल भी बना होता है. अगर सिंपली आप सपोज़ फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर लिखा है 5, नंबर 5 नंबर की की को प्रेस करोगे तो क्या होगा, 5 टाइप हो जाएगा. लेकिन आप चाहते हो 5 नंबर की में जो सिंबल है वो टाइप हो, वो डिस्प्ले हो स्क्रीन में. फॉर दैट यू नीड टू प्रेस 5 विथ शिफ्ट की. आप शिफ्ट की के साथ जब 5 बटन को प्रेस करोगे तो 5 नंबर के साथ जो एक और सिंबल होगा ना, वो टाइप होगा, ना कि 5 टाइप होगा. सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ शिफ्ट की. next one is the tab key. Tab key is also not given in your book, but you can see to this. Okay, knowledge never gets in vain. When you press the tab key, the cursor jumps several spaces forward. What is tab key? जिसे आप स्पेस बार की यूज़ करते हो स्पेस देने के लिए. ठीक है, एक बार आपने स्पेस बार की प्रेस की, एक स्पेस क्रिएट हो गई. इस तरीके से जब आप 5 टाइम्स स्पेस बार की प्रेस करोगे तो 5 स्पेस क्रिएट होगी. 5 इक्वल स्पेसेस क्रिएट हो जाएंगी ना. एक बार प्रेस की, फिर स्पेस क्रिएट हुई, फिर दूसरी बार प्रेस की, फिर और स्पेस हो गई, फिर तीसरी बार में और ज़्यादा स्पेस हो जाएगी. ऐसे करके बहुत सारी स्पेस हो जाएगी. टैब की से उतने 5 स्पेसेस बराबर स्पेस देने के लिए एक बार में हम टैब की प्रेस करते हैं तो 5 स्पेसेस बराबर स्पेस क्रिएट हो जाती है बिटवीन वर्ड्स और लेटर्स. Next, let's look This at is also not given in your book, but you can see to this. the escape key, which is at the top left corner of the keyboard. The escape key is used to stop or cancel any operation in the computer. सपोज स्पेस की का बेसिक यूज़ क्या होता है. सपोज़ आपने कोई विंडो ओपन की है, नाउ यू वांट टू क्लोज दैट विंडो. ठीक है, तो आप जो क्लोज बटन होती है उस पर ना क्लिक करके सिंपली आप एस्केप की दबाते हो तो विंडो क्लोज हो जाती है. कोई आपने कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे कंप्यूटर में, अब आपको उसको लगता है कि यू नीड टू क्लोज इट, आपको उसको क्लोज करना नहीं, उसको फर्दर चलने देना है, आप एस्केप की दबाते हो तो वो चीज़ क्लोज हो जाती है. Next, let's learn about the. Let us summarize what you have learnt in this video. Now see this keyboard properly. अब इस कीबोर्ड को आप ध्यान से देखिए, इसमें सारी कीज़ यहाँ पे इंडिकेट की हैं कि किस की का क्या नाम होता है. यू कैन सी हियर नंबर कीज़ दिख रही हैं आपको. 2 सेट ऑफ नंबर कीज़ होते हैं. एक होता है अल्फ़ाबेट कीज़ के ऊपर और एक होता है राइट हैंड साइड पे हियर. ओके, देन यू हैव अल्फ़ाबेट कीज़. आपके पास अल्फ़ाबेट कीज़ होती हैं. शिफ्ट की होती है, स्पेस बार की होती है विच इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड. देन यू हैव टैब की, देन कर्सर कंट्रोल की, डिलीट की, बैक स्पेस की एंड एंटर की. सो ऑल दीज आर द कीज़ दैट आर अवेलेबल इन द कीबोर्ड. अल्फ़ाबेट कीज़ से आप अल्फ़ाबेट्स टाइप करते हो A to Z. नंबर कीज़ से आप नंबर्स टाइप करते हो फ्रॉम 0 to 9 से रिलेटेड. आप कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स को टाइप कर सकते हो. देन विद द स्पेस बार कीज़ आप 2 वर्ड्स या 2 लेटर्स के बीच स्पेस देने के लिए यूज़ करते हो.
ओके, देन वी हैव एंटर की। आपको कोई भी वर्ड, लेटर, कोई सेंटेंस आपको न्यू लाइन से स्टार्ट करना होता है, देन यू हैव एंटर की। देन व्हाट इज़ टैब की? टैब की से हम क्या करते हैं, 5 स्पेस की के बराबर स्पेस देने के लिए हम टैब की का यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ एस्केप की? एज द नेम सजेस्ट, एस्केप। एस्केप मतलब कहीं से भागना, एस्केप होना। ओके, सो एस्केप की का काम क्या होता है, अगर आपने कोई ऑपरेशन कर रहे हो, आप कोई चीज़ ओपन करे हुए हो विंडो में, आप चाहते हो उस चीज़ को क्लोज़ करना, देन यू कैन यूज़ एस्केप की। इंस्टेड ऑफ यूजिंग द क्लोज बटन यू कैन यूज़ एस्केप की। देन यू हैव बैक स्पेस की। बैक स्पेस की का काम क्या होता है, बैक साइड जाता है कर्सर और लेटर्स डिलीट होते जाते हैं। मीन्स आपका जो कर्सर होता है वो राइट हैंड से लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ मूव होता है और लेटर्स जो होते हैं लेफ़्ट हैंड साइड के वो डिलीट होते जाते हैं। बट व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ डिलीट की? डिलीट की का काम क्या होता है, जस्ट ऑपोजिट बैक स्पेस की और डिलीट की क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। ठीक है, जैसे बैक स्पेस से आप क्या करते हो, लेफ़्ट हैंड साइड के लेटर्स को डिलीट करते हो, जबकि डिलीट की से आप राइट हैंड साइड के लेटर्स को हम डिलीट करते हैं। Okay, so the next one is the shift key. What is the use of shift key now? Shift key का काम क्या होता है, suppose for example you can see in this keyboard only, जैसे जहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखा है ना, 10 लिखा है, कुछ कीज़ ऐसी हैं जहाँ पे दो सिम्बल्स बने हुए हैं। Suppose you want to type the symbol, not the letter. अगर आपको नंबर टाइप नहीं करना है लेकिन नंबर के ऊपर जो सिंबल दिया है उसको प्रिंट करना है, उसको टाइप करना है, फॉर दैट यू विल यूज़ द शिफ्ट की विद दैट नंबर। आप क्या करोगे, शिफ्ट की को दबाओगे, फिर उस नंबर को प्रेस करोगे ना, तो वो नंबर नहीं टाइप होगा, उस नंबर के साथ जो लेटर होगा, जो सिंबल होगा वो टाइप होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखोगे आप, इसमें 9 लिखा है, 9 में क्या बना है, ऊपर एक ब्रैकेट बना हुआ है, नंबर 9 है, 9 नंबर के ऊपर क्या बना है, ब्रैकेट बना है। अब जब आप सिंपली 9 को प्रेस करोगे तो क्या टाइप होगा, 9 टाइप होगा। लेकिन अगर आप 9 को शिफ्ट के साथ प्रेस करोगे, मतलब आप शिफ्ट की दबाओगे, साथ में 9 नंबर को प्रेस करोगे, तो 9 के साथ जो ब्रैकेट बना है ना 9 नंबर की पे जो ब्रैकेट बना है, ओपनिंग ब्रैकेट, वो टाइप होगा, ना कि लेटर 9। So this is the use of shift key. Now you have another set of keys, that is cursor control key. कर्सर कंट्रोल की का काम क्या होता है, आपके पेज में, आपके लाइंस में ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट में जाने के लिए हम कर्सर कंट्रोल की का यूज़ करते हैं। आप देख रहे हो ना, 4 कर्सर हैं, एक ऊपर जाने के लिए, एक नीचे जाने के लिए, एक लेफ़्ट जाने के लिए, एक राइट जाने के लिए। सपोज़ आपने 10 लाइन्स लिखी हैं, आप मिडिल ऑफ द लाइन 5th लाइन पे हो, आपको 2nd लाइन पे जाना है, तो आप जो एरो की है उसका यूज़ करोगे। अगर आपको नीचे आना है तो आप डाउन एरो की का यूज़ करोगे, आपको लेफ़्ट जाना है तो लेफ़्ट एरो की का यूज़ करोगे, और राइट जाना है तो राइट एरो की का यूज़ करोगे। ओके, सो दीज आर द एरो कीज़। एनी कीज़ लेफ्ट? आई थिंक एवरीथिंग इज़ कम्प्लीटेड। Another thing that you should note is that हमारे कीबोर्ड में एंटर कीज़ कितनी होती हैं, 2 एंटर कीज़ होती हैं। ठीक है, 2 एंटर कीज़ होती है, 1 is here, you can see that is marked, and 1 is in the numeric keypad. You can see here, ये numeric keypad में जो बड़ी सी की दिख रही है ना, that is also an enter key. नेक्स्ट नंबर कीज़ कितनी होती हैं, 0 to 9, that is 10 नंबर कीज़ होती हैं, और 2 सेट्स होते हैं, एक होता है आपका अल्फ़ाबेट्स के ऊपर और एक न्यूमेरिक कीपैड, दैट इज़ राइट हैंड साइड में आपका न्यूमेरिक कीपैड होता है। सो दीज आर द मेन कीज़ ऑफ द कीबोर्ड। Okay, I hope everything is clear to you and you can understand this topic well, because I have shared previous videos with you all, in that I have explained you each and everything. Okay, so watch this video carefully. If you have computers, just go through the keyboard, and one task for you all. What you have to do, एक टास्क दे रही हूँ आप लोग को, आपको क्या करना है, इफ़ यू हैव कीबोर्ड्स, अगर कीबोर्ड्स हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो आपके बुक में देखो कीबोर्ड की पिक्चर बनी होगी कहीं ना कहीं, उसको ओपन करिए और उसमें काउंट कीजिए हाउ मेनी कीज़ आर देयर, टोटल नंबर ऑफ़ कीज़, टोटल कितनी कीज़ हैं कीबोर्ड में, वो काउंट करना है आपको। ओके,
So this is the task for you all. Okay, so do it. Thank you.